Namaskar. Uh, as part of the Road Safety Month for 2024, we will be training the road safety volunteers, and uh, this short lecture is for that purpose. I am Venkatesh Balasubramanian, professor at IIT Madras, and I head the Center of Excellence for Road Safety at IIT Madras under Ministry of Road Transport and Highways. इस वर्कशॉप में वी विल बी लुकिंग एट ये रोड सेफ्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रोड क्रैशेस, जो रोड फर्नीचर क्या है, व्हाट आर द मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट द रोड सेफ्टी and legislations as well as Good Samaritan Acts. In the end, I will end it with a few things that can be done for an activity-based learning. So, as soon as we hear the word road safety, most of you would have seen these signages. ये जो schools के पास zebra crossing या road crossing का signage या no stopping or no parking जो वाले no U-turn, all this no signs वो सब है. But road safety is a little bit more than what we are talking about. Road safety involves all the methods to reduce the probability or possibility of accidents, injuries and fatalities. Why do we do that? It is to improve the road efficiency. Road efficiency means roads are built primarily for the free flow of goods, services and people in it. So, road safety, now to put it in perspective, the primary purpose of the roads, its efficiency increases by reducing the wastages from accidents, injuries and other issues that are there. जब भी हम किसी मुद्दे पे जाते हैं तो इट इज़ बेटर टू गो विथ सम डेटा, और यहाँ भी हम थोड़ा आंकड़े लेंगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे जो करना है. आप ये जो नीचे देख रहे हैं, in India on an average has been killing approximately about 150,000 of our citizens on the roads every year. और ये पिछले साल 2022 as per the MORTH record, we had about 1,68,491 fatalities. बहुत ज़्यादा है, almost 1.7 lakh fatalities have happened. और ये कहाँ पे हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा 89% इज़ इन द वर्किंग एज ग्रुप, माने अंडर 60 के. और आप ये देखेंगे कि लगभग 6% इज़ इन द लेस देन 18 और 20% इन अंडर 25. ये जो 18 के 25 है, दैट इज़ द टाइम दैट यू फर्स्ट गेट अ लाइसेंस एंड स्टार्ट ड्राइविंग अ व्हीकल. और ये 25 to 35 जिसमें 25% है जहाँ पे आपको कमाना शुरू हो जाती है. यू स्टार्ट अर्निंग एंड यू स्टार्ट बाइंग योर फर्स्ट व्हीकल्स एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट. If that is the worrisome factor, we also see that 84% of the crash are fault of the driver. Meaning ये जो human errors से होती है, if we can avoid that, 84% is the human error. उसमें 71% of all the fatalities, if you look at it, are from overspeeding. लगभग 40% is because people have not used safety device, and about 8% without driving license. These are interlooping data. माने somebody may not have a license, may not wear a helmet and will be driving very fast. तो तीनों में वो घुस जाएंगे. So it is individually in each of these categories we have had so much of losses. If you were to look historically, हम ये देखेंगे कि 2020 अपने जो कोरोना के समय we are having a dip in the number, लेकिन उसके बाद we have sorted out and we are claiming and coming back to the लगभग 4,60,000
crashes with 1,68,000 fatalities that are there. लेकिन आप ये देखेंगे कि number of people killed for every 100 accident, which is the accident severity index, वो लगभग वही पे है. It is not changed much, right? So there is our key share. और उसमें आप तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आप देखेंगे. It is not that these states don't do work. These are the states with high population or high penetration of vehicles, meaning जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है या वाहन का संख्या है वो ज़्यादा है. These are the states where you have that issue. और उसमें आप थोड़ा केयरफुली इफ यू लुक एट इट, लगभग 71% इज इन ओवर स्पीडिंग और अपनी वायलेशन जो रॉन्ग साइड में 5.5% है, एंड ड्रंक एंड ड्राइविंग 2.5%. शायद उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो आंकड़े ऑफिशियली आती है उसमें 2.5% के ड्रंक ड्राइविंग में आती है और 2% ये जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ अ क्रिटिकल थिंग. तो हम थोड़ा we will look at it a little close at a broad level. If there are 3 critical things that we can touch, एक तो ह्यूमन एरर हो जाती है जो वहाँ पे वायलेशंस होती है. अगर आपको जो चीज़ नहीं करना है वो करते हैं और जो चीज़ करना है वो नहीं करते हैं. जैसे कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस या पीपी नॉट यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्शन हेलमेट, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सच एज हेलमेट, वो सब यूज़ नहीं. दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन somebody else's कंट्रोल, जैसे कि एनवायरनमेंट, जैसे यू हैव अ रेनफॉल और अ स्नो और रोड में some natural calamity happens or maintenance issues are there, wear and tear, normal wear and tear had created issue या जो भी है. So those are second road related issue. और तीसरा वाहन व्हीकल के कारण, जैसे कि उसके एज जो है, उसके मेंटेनेंस, वो कितने वेट कैरी करती है एंड ऑल दोस थिंग्स. जब थोड़ा टेक्निकल हम जाएंगे टू अंडरस्टैंड, ये जब हमने पहले बार रोड सेफ्टी के बारे में हमने शुरू किए थे काम करने के लिए, वी स्टार्टेड विद अ सिस्टम मॉडल. तो ये सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है थोड़ा. प्रिमाइस, उसके प्रिमाइसेस आर देयर जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे. ये पहला प्रिमाइस है कि टाइमलाइन का और क्रोनोलॉजी तो हमें समझना पड़ेगा. एक क्रोनोलॉजी में जब वहाँ पे एक्सीडेंट होती है उसके पहले जो होती है प्री, और जब एक्सीडेंट होती है उसके आसपास के समय में उसको पेरी बोलते हैं, और एक्सीडेंट के बाद पोस्ट होते हैं. जब भी आप किसी जगह पे आपको एक्सीडेंट ही नहीं होना है या डिक्रीजिंग द ओकरेंस रेट, इट इज द प्राइम पर्पस ऑफ व्हाट हैपेंस बिफोर एन एक्सीडेंट. लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाती है तो हमारा पूरे के पूरे ध्यान हाउ डू वी इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट में आती है. तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लैरिटी होगा. एजुकेशन इज वन ऑफ द की थिंग. इसीलिए हम इस अभियान को अभी चला रहे हैं इस रोड सेफ्टी मंथ 2024 के ऊपर, कि हम जैसे ये जो बालक है, द young impressionable age people who contribute to more than 26% of the fatalities, unko how do we reach across to them so that they are able to learn certain driving ke etiquette as well as rules and regulations. Of course there are various departments which will do their activity. और जब एक्सीडेंट हो जाती है तो पहला हमारा पूरा ध्यान इसमें होती है कि हम वहाँ से कैसे इवैक्यूएट करेंगे और उनको कैसे ट्रीट करेंगे, या हाउ डू वी इंश्योर दैट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज अंडरस्टूड बाय अस एंड कम फॉर एन इंटरवेंशन. ये भारत सरकार
कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन 2019 2020 एक्चुअली started a very important initiative कि हम आंकड़े को लेकर अपना अभियान चलाएंगे, व्हाट वी कॉल एज डेटा ड्रिवन इंटरवेंशन। और इस डेटा ड्रिवन इंटरवेंशन के लिए हमें आंकड़े चाहिए, इसलिए तब आईरैड शुरू किए थे, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, और उसको रीनेम्ड एंड इंक्रीज द स्कोप ऑफ इट, एंड अभी इसको ईडार बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड इट एज अ सिस्टम। ये सिस्टम के लिए ये मोटिवेटिंग फैक्टर, जब हमने शुरू किए थे अपने रोड सेफ्टी का कार्यक्रम 2016-17 में, हम देख रहे थे कि टीएन लीडर बोर्ड में टॉप में आ रहा था, लेकिन हम एक गोल क्या है, वहीं वो तो जमीन पे वो फैक्ट था, वो था हमारा गोल ये रहा कि हाउ डू वी रिड्यूस फेटालिटीज टू 50%, राइट। आप 2030 रख लो, 2020 रख लो, 2050 रख लो, जो भी रखना है आप रख लीजिए, बट अभी भारत सरकार का, हमारा देश का वेरी सिंपल गोल है कि हम 2030 में 50% रिडक्शन लेकर आएंगे। ये देश का गोल नहीं है, हर नागरिक का जिम्मेदारी है। तो हम सब इसके लिए अपने जो वॉट एवर वी कैन डू, वो प्रयास जारी रखना पड़ेगा। वी हैव टू मेहनत करना पड़ेगा जमीन पे, ताकि ये गोल हम नेशन, ये जो लीडर बोर्ड में हम आ रहे हैं वहां से नीचे आना है। तो एक आदमी नहीं कर सकती है, एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकती है, हम सब मिलके करना पड़ेगा। इसमें मुख्यतः आप जो टीचर्स हैं, वो जो यंग एंड इम्प्रेशनेबल होते हैं, माने जो आप कहते हैं वो सीधे अपने मन में बैठ जाती है, उसको आप ठीक तरह से रियल करेक्ट रूल्स, रेगुलेशंस, एटिक्वेट सब सिखाएंगे, तो देयर विल बी इंटरेस्ट एंड एवरीबडी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट कलेक्टिव नेशनल गोल। तो हमने ये बताया कि हम डेटा ड्रिवन चलाएंगे ये अभियान। तो पहले ये ट्रांसपोर्टेशन रजिस्ट्री बनवाए थे, वो आईरैड ईडार के बारे में हम बता रहे थे, और जो व्हीकल के इंजीनियरिंग करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियरिंग करना है या ट्रॉमा केयर करना है, वो सब हम हर प्रांत में किए हैं। इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप बाद में प्लीज रीच आउट, वी कैन हेल्प यू। तो तीसरा बात ये होती है कि ये 4 E's जो होती है, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड इंजीनियरिंग, ये 4 E's आर वेरी क्रिटिकल फॉर अ गुड रोड सेफ्टी। तो हमने ये बोले कि इसको आप सिस्टम देखेंगे कि आप ये जो इमरजेंसी केयर एंड इंजीनियरिंग, वेयर डू दे स्टैंड, दे आर द ऑन द ग्राउंड थिंग। और ये जो स्काई और थॉट लेवल में जो है, दैट इज द एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट। जो जमीन में आपको चाहिए वो गुड इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर, और एट थॉट लेवल हमें ये एजुकेशन चाहिए कि ये हो रहा है, ताकि जो भी आप जमीन में करेंगे वो थॉट विल कम इन टू योर प्ले। और ये सब मिलके काम करना है, तो वन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैज टू बी फैक्टर्ड, दैट इज द ह्यूमन बीइंग। ये एम्पैथी के माध्यम से ही हो पाएगी। तो दैट फीलिंग ऑफ अ कलेक्टिव ओनरशिप, ऑस रोड किसी के नहीं है, किसी के जो मामूली बात में कहते हैं कि आपके बाप का है, रोड किसी के बाप का नहीं है, हम सब का है। ऑल ऑफ अस आर द स्टेक होल्डर्स, और वी शुड हैव द रिस्पेक्ट फॉर अदर स्टेक होल्डर्स, एंड इसीलिए वो एम्पैथी चाहिए हमें। तो आगे बढ़ाने के लिए व्हाट इज दिस, अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पे वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द रोड फर्नीचर, और इस फर्नीचर के बारे में बहुत सारी चीज है, बहुत सुलभ तरीके से सीखने के लिए बहुत सारे मटेरियल है, और आपको उसके बारे में टेस्ट करना है तो आप अपने माई भारत पोर्टल में भी टेस्ट भी आप चला सकते हो। तो ये रोड फर्नीचर, ये ड्राइवर बिहेवियर, ये रिस्क फैक्टर्स दैट आर देयर, एंड ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे, या इस वर्कशॉप में हम देखेंगे।
ये फर्नीचर क्या होती है? जब हम इंजीनियर नहीं थे तो व्हेन आई यूज्ड टू हियर द वर्ड फर्नीचर मैं सोचता था कि ये टेबल चेयर कहाँ पे आकर बैठती है। जैसे हमारे टेबल चेयर अपने मकान में आकर बैठती है, जस्ट लाइक अ टेबल चेयर इज पार्ट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ योर हाउस। जब रोड बन जाती है जहाँ पे पेवमेंट बनाते हैं, उसके ऊपर जो भी डालते हैं, they become those features that are very important to the road utilization and usage. एंड हर फर्नीचर का एक ही मकसद है कि उस रोड का एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। रोड का एफिशिएंसी माने गुड सर्विसेज एंड द ह्यूमन कैन कम्यूट थ्रू इट बेटर विदाउट एनी वेस्टेज प्रिफरेबली, और विथ लेस वेस्टेज मोस्ट प्रैक्टिकली। तो जैसे आप रोड में जाएंगे कि रोड डिवाइडर है या फुट ओवर ब्रिज जो है या अपना जो स्ट्रीट लाइट्स है, वो सब रोड फर्नीचर में आ जाती है। देर आर सर्टन ट्रैफिक कामिंग मेजर्स। कामिंग माने हर बंदे जब रोड में आ जाते हैं तो इमीडिएटली आवर फीलिंग कि यहाँ पे आप तेज चलना ही पड़ता है। तो ये यू नो व्हेन यू सी अ वेरी गुड रोड, people always comment if you make a very good road I have to drive fast। वो जो एड्रेनलिन जो स्वाभाविक रूप से आ जाती है, but engineeringly we try to control it, so we pacify the people। जैसे कि आपने देखे होंगे स्पीड ब्रेकर, हर स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर होती है, हर जंक्शन के पास ये रंबल स्ट्रिप या टीसी द ट्रैफिक कामिंग के लिए ट्रांसवर्स बार्स जो लगा देते हैं, ताकि आपको ये ध्यान दे सकती है कि आप एक जंक्शन पे आ रहे हो, यू आर रीचिंग अ जंक्शन, सो स्लो डाउन। यहाँ पे आप वल्नरेबल रोड यूजर्स जो पैदल जाते हैं या साइकिल में जाते हैं उनको आप मार सकते हो, या मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, दे आर वल्नरेबल रोड यूजर्स। आप जब गाड़ी में बैठते हो जैसे कि कार में थोड़ा प्रोटेक्शन है, लेकिन जो वल्नरेबल है उनके लिए इतना प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए आप ये सब देखे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे राउंड अबाउट में भी यू मे सी द ग्रास, you may also see certain signages and other things that are there। और ये मीडियन में जो होती है रोड डिवाइडर, मीडियन माने मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड में जो डिवाइडर आती है बहुत सारे पेंट लगाते हैं ताकि आप ये समझ लीजिए कि ये रोड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इसके आगे थोड़ा एलिवेटेड है, आप यहाँ से यहाँ नहीं जा पाओगे, इसलिए ये रखे हुए हैं। और आगे से गाड़ी आती है, उनके लाइट सबको हाई बीम में नहीं जाना है, लेकिन आप हाई बीम कम नहीं किए तो ड्राइवर इज़ नॉट अफेक्टेड, तो यहाँ पे प्लांटेशंस या पौधे आ जाती है। समटाइम्स इफ बोलार्ड्स आर यूज्ड फॉर स्टॉपिंग, बोलार्ड्स जो ज़मीन पे जाती है और यू कैन ब्रिंग इट अप एंड यू कैन टेक केयर ऑफ द व्हीकल फ्रॉम कम्यूटिंग। या शोल्डर्स जो कैरेज वे सेपरेटर्स में ये शोल्डर्स आ जाती है, साइनेज जो है वो सब आती है। इस साइनेज इज द वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। ये साइनेज क्या होती है? ये साइनेज इतना ही है कि ये जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था ना, इसके लिए कोई डिजाइनर होता है। जैसे कि मैं डिजाइन डिपार्टमेंट आईआईटी से हूँ, ऐसे बहुत सारे डिजाइनर रोड बनाते हैं, लेकिन आप सब ये जो रोड के सब यूजर्स कैन नॉट गो टॉक टू द डिजाइनर। वो डिजाइनर वो जो रोड के डिज़ाइन करने के समय वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने के लिए बोलता है, दैट वन इज द साइनेज। इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द रोड ओनिंग एजेंसी। जो डिज़ाइनर है उसके बाद उस रोड को जो चलाते हैं द रोड ओनिंग एजेंसी, वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप उस साइन को यूज करें, उसमें उसको 3 अंग में बांटे हैं। एक तो कॉशनरी है, दिस इज टू कॉशन यू फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रबल। द सेकेंड इज टू मैंडेटरी, मीनिंग बॉस आपको ये यहाँ पे रोकना पड़ेगा या ये करना ही पड़ेगा, दैट इज योर मैंडेटरी साइंस। और तीसरा होती है इंफॉर्मेटरी। जब आप हाईवे में जाते हो, आप ऊपर लिखे होंगे कि मद्रास अनदर और चेन्नई अनदर 70, चेन्नई 70, तो 70 किलोमीटर में
चेन्नई 001 पहुंच जाएंगे आप, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये सब है. सो दीज आर इंफॉर्मेटरी साइंस दैट आर देयर. Mostly the cautionary signs are triangle, the mandatory are circular and the informatory are the boards जहाँ पे rectangular आते हैं. लेकिन हर चीज ऐसे नहीं है, there are other things, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है. So every road user, not just because you want to get a license, but every road user, आप पैदल भी चले जाएंगे तो आपको कम से कम ये साइन को रीड करके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या है. ये सब आप अगर बच्चों को पहले से ढंग से सिखाएंगे कि दिस इज द साइनेज, ये साइनेज यही कम्युनिकेट कर रहे हैं, रोड ओनिंग एजेंसी इज कम्युनिकेटिंग विद अस, ताकि इसको पालन करेंगे तो उसमें वेस्टेजेस अवॉइड कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं और मुख्यतः फैटालिटी अवॉइड कर सकते हैं. आप ये देखे होंगे, मैं ये बता रहा था कि ये कांचीपुरम 18 किलोमीटर में, वाणियम्बाड़ी 148, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, और मुंबई 1238, तो जो यहाँ से मुंबई चलाना है तो इतना चला जाओ. और ये साइंस भी है कि वी विल गेट इनटू द स्पीड का साइन या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. यहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का क्रॉसिंग हो पाएगी. और आप ये देखेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ही नहीं डाले, हेलमेट वेलमेट नहीं डाले हैं और ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू टेक इट फॉरवर्ड. तो हम थोड़ा 1 मिनट ये कॉशनरी रोड साइंस के ओवरव्यू में देखेंगे. एक कॉशनरी रोड साइन आपको एक कॉशन करती है कि आप, जैसे कि ये हेयर पिन बेंड है, आप इफ यू आर कमिंग थ्रू घाट रोड या हिल रोड में आप आ रहे हो, तो द हेयर पिन बेंड इज योर इंडिकेटर कि यहाँ पे नंबर भी आएगी, ये 15 बेंड है, 18 बेंड है, टोटल 35 बेंड हैव टू बी नेगोशिएटेड. सो ये राइट में बेंड आ रही है, लेफ्ट में आ रही है. दीज आर ऑल फॉर कॉशनिंग द रोड यूजर की आगे क्या आने वाली है. आप इससे कुछ रूल्स और रेगुलेशन के नहीं है, आप इसको उल्लंघन नहीं कर सकते हो, लेकिन इससे आप थोड़ा सावधान हो पाओगे. यू कैन गेट केयरफुल एंड नॉट डू एनी मिस्टेक. ये मैंडेटरी में क्या होती है, इफ यू वायलेट इट तो आपको चालान मिल जाएगी. अगर आपके पास ये स्टॉप लगा हुआ है तो आपको स्टॉप करना पड़ता है, या ये यील्ड साइन या गिव वे साइन आती है तो आपको, आपका राइट है गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन आपके राइट से द अदर रोड पर्सन हु कम्स, उनके राइट्स ज्यादा है. जैसे कि आप एक मेन रोड में, आर्टीरियल रोड में चला रहे हो, आप मर्ज कर रहे हो. आर्टीरियल रोड में जो गाड़ी चलाता है, ही इज प्रोबेबली ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, और आप उस रोड में लगभग 0 to 10 किलोमीटर पर आवर से मर्ज हो रहे हो. So when two mismatched speeds are connecting, then you are increasing the probability of an accident. So it's better to let the fast fellow go first, then you merge into the column. That is the thought process. The most important is, अगर आप मैंडेटरी साइंस को उल्लंघन करेंगे, आप पालन नहीं करोगे, तो आपको चलान मिल जाएगी. तीसरा होती है कि इंफॉर्मेटरी. ये इंफॉर्मेटरी साइंस जब हम ये पढ़े थे, यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, यहाँ पार्किंग, यहाँ पे ये आ जाती है, वो आ जाती है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. सो जब आप ये बच्चे को सिखाते हो, जो भी आप सिखाते हो, तब ये सब आप बता सकते हो कि ये मैंडेटरी क्या होती है, ये कॉशनरी क्या होती है, और इंफॉर्मेटरी क्या होती है. इंफॉर्मेटरी मेरे सुविधा के लिए है, ये कॉशनरी मुझे सावधान करने के लिए है, और ये मैंडेटरी मुझे पालन करना ही पड़ती है, वो कानूनी तरफ से उसको पालन करना पड़ता है. तो बहुत सारे, आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये फर्स्ट एड का रेड क्रॉस है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल मिलने वाली है, या पेडेस्ट्रियन सबवे में नीचे जाना है आपको, या इस बोर्ड के दोनों तरफ आप पार्क कर सकते हो. सो वेरियस साइंस दैट आर देयर. तो एज
ट्रेनर्स जो बच्चों को आप सिखाते हो, that time you can show these signs and ask them the question. All these signs, there is a quiz that you can also share for those people. Another very critical is this marking, जो रोड में मार्क करते हैं कि ये शोल्डर है और ये 3 लेन यहाँ पे है और ये मीडियन शोल्डर जो है उसके बाद ये मीडियन आ जाती है, राइट? और उसमें भी यहाँ पे आपको ये आ जाती है साइन, एरो मार्क कि आप सीधे चलो, यहाँ पे लेफ्ट टर्न नहीं करो. All those things are all available on that, the road surface or pavement, so that the information gets communicated. Some of the examples of the road safety, a cat's eye जो है pavement में raised है, so if you are cutting across the line, it is going to warn you. और ये आप देख सकते हो, ये this is a high visibility in a और high contrast जो होती है, रात में आप जाओगे, even if your light is dim, ये रोड अपने आप कम्युनिकेट करती है कि बॉस आप यहाँ से यहाँ मत जाओ, ये आप इस लेन के अंदर ही रह जाओ. दैट रोड स्टड्स ऑफ द कैट्स आइज एंड अदर थिंग्स दैट आर देयर. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये देख लीजिए, अगर ब्रोकन लाइन है तो आप यहाँ से यहाँ आ पाओगे, अगर ये सॉलिड लाइन है तो आप को यहाँ पे ही होना चाहिए. तो आप ये अ गुड बिहेवियर इन अ रोड कि आप यहाँ पे जा रहे हो, आप यहाँ पे आ रहे हो, दोज आर ऑल वेरी क्लियर. बट इन अ डेंस फॉरेस्ट यू कैन नॉट सी कि यहाँ पे कौन आ रहा है. इफ देर इज समबडी कमिंग फ्रॉम हियर, आपको यहाँ से दिखाएगी नहीं. सो इट इज बेटर दैट यू डोंट गो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड. दैट इज वाई द रोड इज टॉकिंग टू यू. किसी द रोड ओनिंग एजेंसी, द डिजाइनर, दे हैव ऑलरेडी सीन इट कि आप यहाँ से जाओगे तो आपको विजिबिलिटी कम हो जाएगी, यू वोंट नो कि कोई बंदा वहां पे आ रहा है, और गाड़ी आप यहाँ पे चलाओगे तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो आप लोगों को यही करना है कि आप बच्चों को ये बता दीजिए कि दे मे ड्राइव और दे मे नॉट ड्राइव, एटलीस्ट दे सी एंड बिकम एन ऑडिटर ऑफ देयर फादर एंड मदर व्हेन दे ड्राइव. अगर वो जो रोड जब बात कर रही है, if they are not listening to the language of the road through the markings, at least the children should teach the older children or the parents. So next thing is about the driver behavior and the risk factors that are coming. It driver ka behavior jo hai, many things that happen. You have a drunk driving, illegal parking, over speeding, not using helmets, signal ko jump karna hai, underage driving और इलीगल पेडेस्ट्रियन एंड एनिमल क्रॉसिंग. इलीगल इसलिए कि वहाँ पे आप तेज गति से जा रही है. सो वी हैव डन रिसर्च एंड पब्लिश की इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ अ इनकमिंग व्हीकल, और वो जब रात हो जाती है इट इज़ बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर समबडी टू जज. तो आप सोचेंगे कि इट विल बी सम मोर टाइम बिफोर द व्हीकल कम्स टू मी, आप क्रॉस करना शुरू करोगे, लेकिन इतना स्पीड से आप नहीं जा पाओगे. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. दोनों तरफ से आपको ठीक तरह से ये सब पालन करना पड़ेगा. वन, एज अ ड्राइवर यू शुड अवॉइड मेकिंग दोज मिस्टेक्स. एज आई सेड, वायलेशन माने डूइंग समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू और नॉट डूइंग समथिंग यू आर सपोज टू डू. दोनों को आपको कम करना पड़ेगा एज अ ड्राइवर as well as a vulnerable road user. And most of the students in the schools are vulnerable road users and auditors of their parents. The ये जो risk factors of road safety होती है, it is any characteristics that cause an increased chance of a traffic accident. If we start ignoring the risk factors, then the probability of an accident happening or a bad outcome जो होने वाली है, there is a very high chance. So an increased risk may lead road users to meet with an accident. Very simple. Is a simple सी बात है. It is very easy to follow, and I'm sure that this is something that can be easily communicated. और आपको भी ये कहूँगा कि आप अपने जो students है, when you communicate with them, you focus on this increasing of the risk factors. आपको रिस्क फैक्टर इज नॉट टू स्केयर यू, रिस्क फैक्टर इज टू वार्न यू, कॉशन देने के लिए है
ताकि आप वो जो चांसेस है उसको डिलिबरेटली कम कर दो, so that the fortune will always favor you. So हम very commonly we say most of the road accidents and fatalities are preventable, right? If only a person is aware about the causal factors, ये जो पहले हम बताए थे साइनेजेस, जैसे रोड हमसे बात करती है, रोड में जो फर्नीचर लगा हुआ है, ऑल दोज थिंग्स इफ यू फॉलो इट प्रॉपरली इट बिकम्स गुड. ये जो इंजीनियर्स है, दैट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट इट कम्युनिकेट्स इजीली टू यू, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस as a road user to understand what it communicates, and it is extremely important for children to learn it at a very young age कि ये बात है. जब आप ट्रैफिक लाइट में रेड सिग्नल देखोगे, आप सोचते नहीं कि क्या करना है. समटाइम्स वी थिंक टू जंप द रेड लाइट, बट द प्रोबेबिलिटी इज अगर आप ढंग से गाड़ी चलाते हो, आप रेड लाइट देखते हो तो ब्रेक में आप अपना पाँव या हाथ में ब्रेक पकड़ना है. वी डू इट so that we stop before the stop line, right? So that is the spine level thought process that happens as conditioning if we start the learning very young. So इसमें एक छोटा सा खेल जैसे आप कर सकते हो अपने गेमिफिकेशन बोलते हैं हम. आप अपने बच्चों के साथ इसको गेमिफाई कर सकते हो इन अ क्लास कि ये रिस्क फैक्टर क्या होती है. तो वो रिस्क फैक्टर को समझना शुरू करेंगे. जैसे कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है, आप जीब्रा क्रॉसिंग में जहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग लगा हुआ है, जहाँ पे ट्रैफिक का रेड लाइट है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट इज लेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट ऑल्सो इज देयर. माने अगर इफ सम ड्राइवर इज नॉट स्टॉपिंग एंड ही कम्स एंड हिट्स, दैट इज देयर. But normal course of things, everybody doing, it is very less probability, right? That is a gamification. आप ये इसको खेल के तरफ से आप कर सकते हो कि आप दूध लेने वाले हो, you're going to go get a milk. How many places can you take care of? What are the risk factor involved? ऐसे एक risk factor का एक छोटा सा खेल अपने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकते हो, ABL जो हम बोलते हैं. वैसे ही स्पीडिंग में एवरीवेयर दे से स्पीडिंग, आप बहुत सारे लोग देखे होंगे, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. स्पीड कभी किल, इट डजंट किल. इट इज नॉट ओवर स्पीडिंग दैट किल्स, इट इज हाउ फास्ट यू स्टॉप दैट किल्स, राइट? जस्ट बिकॉज दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस स्पीड कैसे स्टॉप कर रहे हो आप, एक कॉन्क्रीट वॉल्स में टोकते हो तो स्टॉपिंग हैपेंस इंस्टेंटली. So that kills. Energy is the momentum exchange becomes very high and it kills you, right? Even if you go at 300, आप रेस के गाड़ी 200 में जाती है, या बुलेट ट्रेन ऑलमोस्ट 470 480 किलोमीटर्स में जाती है. बुलेट ट्रेन नहीं, अपना TGV और द चाइनीज बुलेट ट्रेन एंड ऑल में गो एट 480 490 और 520. उसमें 520 जाने से वो मरते नहीं है, लेकिन वो 520 से जीरो कैसे आती है, दैट इज वेयर यू आर हैविंग अ डिफिकल्टी. तो आपको वो नहीं होना है, तो इट इज बेटर नॉट टू गो टू दैट एरिया. और रोड में इतने, ये रोड है, ये रेस ट्रैक नहीं है, आपको इतने डिस्टेंस नहीं है कि आप स्लो कर पाओगे. you have to stop in a very short distance, or somebody will hit you and you stop there. Therefore it is better not to go to high speed. High speed doesn't kill, but deceleration from high speed to low speed or zero speed is kills. And since the roads don't have a large amount of decelerating space, there is a very high risk factor of speed killing. तो रिसर्च में ये बताते हैं कि every 1% increase in the speed actually increases by 4% your probability of a crash, in severity of the crash में जो होती है. दूसरा चीज ये ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, जो नशे में गाड़ी चलाते हैं. of course very important in today's world to talk
to the children about various factors, जहाँ पे अपने ये जो आप गाड़ी जब चलाते हो, यू डू अ कंप्यूटर आप बन जाते हो, यू आर कैलकुलेटिंग कि मेरा स्पीड क्या है, उनका स्पीड क्या है, अगर वो मेरे ट्रैक में घुस जाएगा, क्या मैं उनको टोकेंगे, यहाँ पे क्या आती है. सो वी डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन अवर हेड व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग, राइट. इट इज अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क, वही बोलते हैं हम रिसर्च में. सो ये CDT है, इट्स अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क है. और ये कॉग्निटिवली जो डिमांडिंग टास्क जो है, दैट गेट्स अफेक्टेड इफ योर कॉग्निशन, आपके थिंकिंग जब अफेक्ट हो जाती है, योर एबिलिटी टू परफॉर्म द कॉग्निटिव टास्क डिक्रीजेस. सो देयरफॉर जो भी नशा आप लेंगे, या शराब हो, या जो भी अदर चीजेस है, ट्रॉपिक psychoactive substances that are there, all of them increases, even amphetamines increases. अगर आप अपने वो जो कोल्ड सिरप देखेंगे, उसमें लगा हुआ, I mean there will be a warning on it, risk factor, कि आप इसको पी के या ये टैबलेट लेकर गाड़ी मत चलाओ. That is not a prohibited substance, it's a schedule H drug, जो आप कॉफ के लिए लेंगे. So if you take it, don't operate heavy machinery or drive. That is what it is, कि आपके cognitive जो abilities है, cognitive demand जो होती है, उसको process करने के लिए जो abilities है, that gets affected. अभी भारत में ये mandatory is 3%, 0.03% per 0.03% per 100 ml blood is the permissible limit of blood alcohol content, और इसको BAC बोलते हैं. इसमें एक छोटा सा फैक्ट है, the amphetamines and other things increases 5 times the risk. So these are all things that you can tell as a game to the children. जब वो कॉफ सिरप जो घर में है, आप उनको लेबलिंग में देख सकते हैं, they can look at that label, and it is not written out of fun, but it is a fact that नशे से हमारे एबिलिटी टू प्रोसेस डिक्रीजेस. और अभी जो नए गाड़ी हैं, दे ऑल टेल कि आप नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट इज, गाड़ी भी नहीं आगे नहीं चलती है, द न्यू व्हीकल. बट एज यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप सीट बेल्ट पहनोगे, what I told earlier कि that is something that you can reiterate, it is the energy transfer. When the energy is very high and the reduction happens very fast, our human body, जो हमारे शरीर है, वो इतना ही एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकती है. आप थप्पड़ मारेंगे तो you can, if somebody slaps across your face, maybe you can take it, but somebody comes with a hammer and hits your cheek, you can't handle it. या किसी के हाथ हैमर जैसे they are slapping, that also you can't handle, but it is a relative amount of how much energy that we can withstand. इसमें गाड़ी में जब आप जाते हो, in an unfortunate circumstance, जब एक्सीडेंट हो जाती है and you are getting tossed all around, अगर गाड़ी के अंदर या आप शीशे को तोड़ के बाहर भी फेंक जाओगे, all those things can be avoided with these belts. बहुत सारे रिसर्च हुई है, बेल्ट डालने से आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस, और जब बच्चों के लिए इट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. एंड दैट इज वन ऑफ द लॉजिक ऑफ यूजिंग द चाइल्ड सीट विद चाइल्ड रेस्ट्रेंट्स. अब जब बच्चे जाते हैं, आप हाथ में पकड़ोगे, दैट इज ग्रेट, दैट इज ऑल्सो अ रेस्ट्रेंट. लेकिन जब आपके पास कोई नहीं है पकड़ने के लिए, दिस वन, अ चाइल्ड रेस्ट्रेंट मे हेल्प टू होल्ड द चाइल्ड केयरफुली. और when a person holds, there is a probability of not holding it right, but जब ये बेल्ट लगाओगे, it will always be in the same place, in the same way, so that it doesn't affect it. Next thing is about helmets. हम ये कहते हैं कि हेलमेट एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है. हेलमेट जब आप यूज करते हो, that doesn't mean that in any crash you will live. but जब आप हेलमेट यूज नहीं करोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो आपके सर है, उसके अंदर आपके कंप्यूटर जो बैठी हुई है, आपके ब्रेन है, दैट कैन हैव अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इंजर्ड.
सो हेलमेट पहने से आपको एवरीथिंग डजंट बिकम नॉर्मल, बट हेलमेट पहन के आप जब गाड़ी चलाओगे देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कोलिशन। जो क्रैश होती है उसका इम्पैक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स जो होती है उसमें आपको इफेक्ट्स का यू कैन हैव अ बेटर इफेक्ट। ये बताया गया कि आपके 2022 आंकड़े जब देखेंगे ऑलमोस्ट 50,000, स्लाइटली अबव 50,000 पर्सन्स वेर डेड एंड हु डिड नॉट वेयर हेलमेट्स। इसमें थोड़ा फैक्ट्स आप देखेंगे दैट ये जो आप गाड़ी को 50 में चलाते हो 50 किलोमीटर पर आवर में, इट हैज द सेम इफेक्ट एज अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम 40 फीट है या 4th फ्लोर से जब आप गिरोगे, वट एवर इज द इफेक्ट दैट यू एक्सपेक्ट, दैट इज वॉट यू आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ थिंग अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर। और ये 2/3 ऑफ द क्रैशेस जो हैपन हैपन, they happen with very proximity, meaning लगभग 66.6% or 67% of the crashes happen within 15 किलोमीटर आप घर के पास। तो ये नहीं है कि आप यहीं पास के दुकान के लिए आप जा रहे हो तो हेलमेट नहीं चाहिए, दैट इज, और ये यहाँ पे पुलिस नहीं होंगे, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, वहाँ पे पुलिस नहीं होंगे, दैट डजंट वर्क बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्रैशेस हैव ये जो क्रैशेस हुई है फेटल में उसमें 15 किलोमीटर के अंदर ही हुई है, विद इन अ रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर्स और 2/3। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और तीसरा फैक्ट जो है कि हर हेलमेट एक नहीं है। BIS या द इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो सर्टिफाइड हेलमेट है, वो सब उसके लिए वो टेस्ट हो जाती है कि वो कितने लोड या व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट इट कैन विथस्टैंड। सो दैट BIS सर्टिफिकेशन आप देख लीजिए जब खरीदते हो, ऑल्सो काइंड ऑफ टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये BIS का स्टिकर नहीं लगा रहे, BIS के जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से इसको टेस्ट किया गया है, दैट इज द BIS सर्टिफाइड हेलमेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग जो हम बोलते हैं, जहां पे आप गाड़ी चलाते हो लेकिन आप, मैंने पहले से बता दिया कि ये कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क है, CDT है, और अगर आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, आप शायद घर में अपने रिश्तेदार के साथ you may have had an argument that might come, or you may be thinking of something else, happy or otherwise, या आप फोन में देख रहे हो, मैसेज कर रहे हो, जो भी है, या किसी से बात कर रहे हो, all of them are a distraction. So that is why they say visual distraction। माने जो रोड है, मैंने पहले से बता दिया, रोड आपसे बात कर रही है अपने साइनेजेस से, अपने जो फर्नीचर्स है उसके माध्यम से वो रोड आपसे बात कर रही है। अगर इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू द रोड विच इज बेसिकली थ्रू योर आईज, यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। आप जब देखोगे तो रोड आपसे जो कम्युनिकेट कर रही है आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। दूसरा होती है कि आपका ये जो मैनुअल डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, वेदर यू आर ईटिंग, स्टीयरिंग व्हील में ऐसे चला के जा रहे हो, हीरो बन रहे हो, जो भी है, एवरीथिंग दैट इज देयर, ये सब मैनुअल डिस्ट्रैक्शंस होती है। फोन में जब आप बात करोगे, ऑल दोज थिंग्स, एंड इमीडिएटली है कॉग्निटिव लोड कि मेरा आई हैव टू थिंक ऑफ दिस 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 दिस, आज ये होमवर्क नहीं हुई है, कल ये करना है, ये झूठ बोलना है, झूठ बोलने के लिए आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, वो तैयारी आप गाड़ी चलाने के समय करोगे तो आप वो भी ठीक तरह से नहीं करोगे और गाड़ी भी ठीक तरह से नहीं चलाओगे, बिकॉज कॉग्निटिवली you are not having adequate demand that is met. The next aspect is about pedestrian safety. Pedestrians are considered a vulnerable road users. There are about 32,825 fatalities as per the 2022 record of MORTH.
this is almost about 20% of the 1,68,000 and odd fatalities for the year 2022 from road accidents in India. This 20%, which is 1/5, is pedestrian, is because of one simple reason, that unlike when we are in a car where जो कार का बॉडी होती है, that gives a protection layer along with all the other uh, active and passive safety systems within the car. However, as a pedestrian, we have our own body, and unfortunately or fortunately, we are not as strong as a Hulk or an Iron Man who can put a coat around themselves or a suit around themselves. So when we are hit, when there is a high energy transfer, our body, be it the muscles, the skin, the bones, and the arteries get damaged, and which leads to fatality of the person. So, as volunteers, it will be great if you can reach out, particularly जो बच्चे हैं, once they have clarity कि जब हम पैदल जाएंगे रोड में तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, what good practices they should be following. ये गुड प्रैक्टिसेस जब सब लोग पालन करेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस बन जाएगी, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दिन के लिए नहीं बट हर रोज जब भी आप रोड में चले जाओगे पैदल, ये सब फॉलो करना पड़ेगा. उसमें देयर आर मेनी थिंग्स बट अ फ्यू क्रिटिकल थिंग्स विच वी फील आर वेरी क्रिटिकल एट यंग एज और यंग इम्प्रेशनेबल एज, वी ब्रिंग इट अक्रॉस. एक तो यू नीड टू लिसन टू द साउंड्स. जो भी गाड़ी आ रही है, अगर आप अपने कान पे एक हेडफोन्स डाल देंगे, जो बच्चे हैं या ग्रोन चिल्ड्रन दैट आर देयर, वंस यू पुट अ हेडफोन्स एंड वॉक, आपके नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स विल नॉट अलाउ एनी एम्बियंट नॉइस. जो रोड से आवाज आ रही है, गाड़ी आ रही है या कोई आपसे चिल्ला रहे हैं कि आप ये मत करो, दैट विल नॉट हैपन. आप मोबाइल फोन नहीं यूज कर रहे हो, आप सिर्फ गाना मीन जो भी गाना सुन रहे हो, that is not going to be of help. So always don't allow anything that will obstruct your ability to hear. So listen. Of course, there are people who may have challenges in hearing. In those cases, we need to augment, and that is where good engineering on roads and vehicles will have to improve. द सेकेंड इज, आप जो रोड पे हैं उस रोड पे ध्यान दीजिए. अगर आप सेल फोन यूज करोगे, यू आर पुशिंग बटन्स एंड और से मैसेजेस, या आप किसी से बात कर रहे हो, या आप कुछ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशंस में अपना कुछ वीडियो देख रहे हो या किसी के वीडियो देख रहे हो, वो इन्फ्लुएंसर को जो भी रेवेन्यू आएगी वो आएगी, लेकिन यू विल हैव ट्रबल. Similarly, you will have to look for the signals, and wherever they are there, please follow the pedestrian signal. These are very simple signals. Please ask them to teach it. The next one is about the zebra crossings and other things that are there. Please cross encourage the children to cross a road where it is designated to cross the road, so that both the drivers who are there in the vehicle and the pedestrians who are crossing are not conflicting more. जब zebra crossing नहीं है and you are running around, you are conflicting with a signal that the road gives to the driver, which is to drive drive normally. Similarly, preferably use the sidewalk या footpath. You need to use that. Of course, there are a lot of times that we stand. Preferably, if you are forced to stand, even if it is a bus stop, and it is late in night, जब ambient light is reduced, जब बाहरी जो रोशनी है वो कम हो जाती है, so preferably stand near an illuminated area, जैसे कि street bulb हो, या always
stand where you can be visible to the drivers who will be on the road. And more importantly, where there is no ambient light, a visible clothing, whether it is the bright colored clothes or luminescent, not the entire clothes, but at least luminescent patches. Please have it either in your bags, in your dresses, so that you are visible to a third party in the night without any inhibition. Uh, so it is very critical, as we said. 20%, 1/5 of the fatality जो roads में होती है वो pedestrian में होती है. और इस important thing को आप थोड़ा बच्चों को बता दीजिए कि how to make sure that they are safe on the roads. There are other risk factors that are there, जैसे कि overtaking है, आप traffic rules पालन नहीं कर रहे हो, उसका जब साइनेजेस है उसको आप इंस्ट्रक्शंस को जो जैसे मैंडेटरी हो या कॉशनरी हो उसको आप ठीक तरह से सुनते नहीं हो. दोज आर ऑल वन. द अदर इज कि रोड आप सब कर रहे हो लेकिन रोड में अचानक एक पॉट होल आ जाती है. इट इज़ रॉन्ग. द रोड ओनिंग एजेंसी शुड फिक्स इट. ये सर जो भी रोड ओनिंग एजेंसी है इट इज़ देयर रोल टू फिक्स इट. पंचायत से लेकर नेशनल हाईवेज तक जो भी रोड ओनिंग एजेंसी है उनको रोड ढंग से देना चाहिए. बट अपना जान जो है उसका कीमती हमारे लिए है. हमारे लिए जब एक्सीडेंट हो जाती है इसका बोझ हमारे जो घर के हैं, दे ओनली सफर, वी एंड आवर फैमिली सफर. सो वन इज टू से दैट इट इज नॉट राइट, इट हैज टू बी करेक्टेड. और दूसरी बात यह है कि आप सावधान गाड़ी चलाइए. ये जो रिस्क फैक्टर्स है, अगर पॉट होल्स है और आज थोड़ा बारिश हुई है और रोड थोड़ा with a lot of potholes, so आप it is important that we be careful about it as an individual. तो यही कहना है कि हम क्या कर सकते हैं रोड में जब हम चलते हैं ताकि हम सेफ और सुरक्षित उस पार अपने जो जहाँ पे भी जाना है वो जाएंगे. सो ये जो ट्रैफिक लेजिस्लेशन है अभी जो मोस्ट रीसेंट इज द MVA एक्ट 2019. उसके पहले CMV रूल्स था 89 का. ड्राइविंग रेगुलेशंस 2017 है. हर स्टेट अपने राज्य में कैसे चलाना है, हर लोकल एरिया में वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपने स्पीड बता देते हैं या क्या कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं. ऑन अ पीरियोडिक वे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इश्यूज नोटिफिकेशंस एंड एडवाइजरीज. बहुत सारे कोर्ट्स ऑर्डर्स इशू करती है कि आपको ये करना है वो करना है. एंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड ये जो है वो भी कहते हैं. ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है इट इज नॉट अ न्यू वन. आप दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस. ये 1914 से है कि मोटर व्हीकल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडिया. जब ये मोटर वाली गाड़ी आई थी फ्रॉम द हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, जब चैरियट कार बन गई थी तब से they understood that there is a speed mismatch and human brain is not understanding that speed mismatch. और इसलिए वो सब मोटर व्हीकल एक्ट वो सब आ गई है. सो इट गिव्स अ टीथ. वो जो 5 E's हम बता रहे थे उसमें वो जो एनफोर्समेंट वाला E's है उसका जो टीथ ऑफ दैट वाज फ्रॉम 1914 ओनली, नॉट इन रिसेंटली. ये जो कहते हैं इट इज अ मैक्सिमम उबी जुस इबी रेमीडियम, मतलब वेर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. सो ये जो लीगल भाषा में जो बोलते हैं कि लीगल इंजुरी इज कॉज टू समबडी, देन हियर शी हैज टू हैव अ राइट टू सीक कॉम्पनसेशन. अगर मुझे कुछ हो जाती है, हम दोनों ये जो रोड है हम दोनों उनके मालिक हैं. वी आर इक्वल स्टेक होल्डर्स ऑन अ रोड. और हम आपके वायलेशन से अगर मुझे इंजरी हो जाती है तो मुझे इतना हक है कि मैं आपसे कानूनी तरफ से एक कॉम्पनसेशन आई कैन गेट. दैट इज द
basis of this entire legislative aspects of it. So from 1920 itself ये बताना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं कि हर किसी जो 3-4 बार घोड़े पे बैठो, घोड़े का सवार करो और घुड़सवार के बाद आप जहाँ पे भी घोड़े उठा लो चलाओ, ऐसे नहीं है. So even in 1920 and then in 1924 it was amended so that there can be a license issued. A licensing माने ये जो गाड़ी आप चलाते हो that is not a right, it is a privilege. ये जो सरकार है, सरकार आपको ये privilege देती है कि आप गाड़ी चला सकते हो. और इसको रिपीटेडली इट हैज बीन रिवाइज्ड कि आप इतने साल के बाद, उम्र के बाद आप गाड़ी चला सकते हो, ताकि आपके कॉग्निटिव डिमांड, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके एटिक्वेट, आपको जो जैसे आप शेयर्ड एसेट जो बोलते हैं, रोड्स है ना, रोड्स आर शेयर्ड एसेट्स. ये शेयर्ड एसेट्स जब बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तब व्हाट इज द एटिक्वेट टू फॉलो, ऑल दीज थिंग्स आर मेजर्ड. So as you can see chronologically, legislatively it has been from 14 say 1939 से 1988 में again मोटर व्हीकल एक्ट आई थी. इसका अमेंडमेंट 89, 94, 2000, 2001 और सबसे लास्ट वाज 19 में हुई थी 2019. The amendment happened. The operative part which you could communicate with your children is this part ki it is not a right, it is a privilege. ये आपके हक नहीं है, ये this is a privilege extended by a government, which means you have to act with a responsibility. When I am given a privilege to do something, I am also responsible to do it accordingly. आप कानूनी तरफ से देखेंगे, there are two parts. One which is the CMVR, which may license how to get the license, registration of vehicle, permits for the transport vehicle, insurance, safety measures, सब लिखे हुए हैं. एंड इसके अमेंडमेंट 19 में जो हुई थी उसमें it goes how to register, all the details into how it can be done. बच्चों को इतना, all the kids should understand that the first step in it as a user is how do I license, how do I register my vehicle, right? And how does it fit within the acceptable norms. उसके हिसाब से हम सबको लेकर चलेंगे. So what is very critical, particularly for the young adults, कि what is the traffic signs, signals, ये जो road markings है वो सब आपको सीखना पड़ेगा. Then the road vehicle driving regulations, there are 40 regulations. The provisions of various sections of the law that are to be applied. Then the duties when involved in an accident, driver, owner and those who become causative persons, the sections that are applicable, the precautions to be taken when crossing an unmanned railway crossing, all those things. And the documents to be carried, CMVR के लिए, MVDR and all those things. ये सब चीज के बारे में आप पढ़ सकते हो एंड इट इज गेमिफाइड. ये अपने माई भारत पोर्टल में एज पार्ट ऑफ दिस 2024 का रोड सेफ्टी मंथ देर आर क्वेश्चंस इन अ गेमिफाइड मैनर. आप खेल सकते हो. ये नहीं है कि आपको पहले से ये सब सिलेबस पता होना चाहिए. You can also use that as an opportunity to learn. आपको what is the right answer will be coming across, ताकि आप उसे learn कर पाओगे. So the various penalties under motor vehicle acts like driving under the influence, not wearing helmet, उसके हिसाब से बहुत सारे फाइन्स है. ये जो अपना MV Act, Motor Vehicle Act of 2019, it goes up to a very large number. ये ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, जो आप बिना जिम्मेदारी आप पी के गाड़ी चलाओगे, सो देयर इज अ वेरी हाई इंश्योरेंस, पेनल्टी कॉस्ट दैट इज पुट ऑल्सो इन. आपके लाइसेंस भी कैंसल हो जा सकती है पॉइंट सिस्टम के हिसाब से. एंड व्हाट आर ऑल थिंग्स दैट नॉट
हम ये कहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये करने से आपको भी नुकसान होती है और औरों को भी, जो फॉलो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी नुकसान है, right? All these things that cause hurt to somebody else who is a legal user of a shared asset. So all those things are taken into consideration. ये, as we say, those who follow और इसको, ये जो पेनाल्टीज है उसको डिटरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम ये कहते हैं कि डिटरेंस इज फॉर द अनडिटरमाइंड एंड एनफोर्समेंट इज फॉर द डिटरमाइंड। माने अगर किसी को ये लग रहा है कि यार मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा, लेकिन क्या होगा उसके बाद, ये मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, देन आई विल नॉट डू, आई मीन पी के गाड़ी चलाऊंगा तो 10,000 रुपीज फाइन और 6 months इम्प्रिजनमेंट, देन आई विल बी डिसुएडिंग। बट यार कौन मुझे क्या कर सकता है, राइट? देन एनफोर्समेंट कम्स इनटू पिक्चर। इसलिए मैं कह रहा था पहले से, ये जो एनफोर्समेंट है ये थॉट लेवल एक्टिविटी है। जब जमीन पे एनफोर्समेंट होना शुरू होती है, दैट मीन्स दैट वी एज अ यूजर इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, right? Only if some people violate, it is an enforcement thing, and to make it as only small number of people, it is us as teachers, हम इनको ढंग से ये सिखाएंगे कि ये सब हो पाती है। ये जो गुड समैरिटन रूल लॉ जो पास हुई थी, एक गुड समैरिटन लॉ ये होती है कि आप बाहर हो, एक एक्सीडेंट हो जाती है, पहले आप बोलते थे, सो देन यू विल बी कॉट, कि इन्वेस्टिगेशन में आपको पुलिस बार बार बुला के दे कैन गिव यू अ ट्रबल एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? ये पुलिस अपने क्वेश्चन करेंगे, थाने पे लेकर जाएंगे, अगर विक्टिम मर जाएंगे तो उनके रिश्तेदार बोलेंगे कि इट इज यू बिकॉज ऑफ whom you that the fatality happened, that responsibility comes to you, या पीपल स्टार्ट्स ब्लेमिंग यू कि आपके कारण ये हुई है, और आप हॉस्पिटल लेकर चले जाओगे तो हॉस्पिटल का एक्सपेंस कौन पे करेगा? एक एक्सीडेंट हो जाती है, आप आप एक अच्छे नागरिक हो, गुड समैरिटन हो, और आप यू टेक दैट, जो घायल आदमी है उनको आप हॉस्पिटल लेकर चले जा रहे हो, and in the hospital they what will happen to the expenses? अगर वहां पे एक्सपेंस करना है तो एक्सरे लेना है तो कौन पे करेगा उसके लिए? All those questions come into the picture. This is the reason why the Good Samaritan law was enacted. तो एक गुड समैरिटन में ये भी है कि आप हेल्प करोगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको पैसा भी मिलेगा। एवरी स्टेट हैज एनेक्टेड अंडर देयर रोड सेफ्टी पॉलिसीज कि यूजुअली 5,000 रुपीज, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड, एंड ये जो गोल्डन आवर में होती है, इन दैट फर्स्ट 1 hour अगर आप उनको ट्रीट करेंगे, it can be good. Or there are some states which also take care of 48 hours of insurance. So आपको पैसे जो खर्च करना है, that is not your big concern. The golden hour is a very critical part. जिस टाइम में अगर आप रीच करोगे, जैसे कि ब्लीडिंग इंटरनली हो रही है, if it is arrested, then you can save an individual. Sometimes we also talk of a platinum 10 minutes. A platinum, sometimes we also talk of a platinum 10 minutes. A platinum 10 minutes is very quickly if you are able to come. जैसे कि ट्रेन्ड पर्सनल एम्बुलेंस में जो इमरजेंसी टेक्नीशियन है, अगर वो या आप जो समैरिटन है, 10 मिनट के अंदर आप थोड़ा कर सकते हो प्लैटिनम मिनट्स में, यू गेट अ वेरी गुड effect of it. तो इसलिए everybody could be a good Samaritan and take it forward. तो हम इसको कैसे गेमिफाई कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? One such game that you can have in your class as a volunteer and train is ये फर्स्ट एड किट क्या होती है,
राइट? इस फर्स्ट एड किट आप जो बाजार में मिलती है उसमें क्या क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हो, बेसिक स्टफ, सो दैट ये एक्सीडेंट नहीं बाकी इमरजेंसीज में जो नॉन ट्रॉमा इमरजेंसीज, नॉन आरटीए और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इमरजेंसीज है उसमें भी उसके लिए यूजफुल होंगे। अपने अपनी जगह पे वेर एवर यू आर फ्रॉम, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज या एनजीओस जो होते हैं दे विल बी वेरी हैप्पी टू परफॉर्म दिस ट्रेनिंग ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, जो बेसिक स्टफ लाइक सीपीआर क्या होती है, उसको कैसे करना है, या कम से कम क्या करना है उस जगह पे। इट इज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए या फर्स्ट एड और फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग जो बोलते हैं हम, you can approach many of these hospitals or NGOs so that they can provide the first responder this thing. The second is about activity based learning for road safety. बहुत सारे gamification कर सकते हो. Will one very simple game which you can do with a small kids is the red light green light वाला गेम। हम इसको थोड़ा डिटेल में ये कह रहे हैं ताकि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आपके जगह के हिसाब से, जो आपके लोकल इश्यूज है उसके हिसाब से, बच्चों को जो आसानी से समझ सकते हैं उसके हिसाब से आप लोकली यू कैन मेक दिस एक्टिविटीज सो दैट दे लर्न। हमारे मुद्दे ये है कि बच्चे को ये समझ आए कि रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन लाइट क्या होती है, येलो लाइट क्या होती है। तो आप क्लास में यू कैन डिवाइड द पीपल लाइक कि आप ट्रक वाले हो, आप मोटरसाइकिल वाले हो, ये वो हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेक सम पीपल एज अ कॉप्स, ये जो एनफोर्समेंट के लिए आएंगे, एनफोर्समेंट वाले पहले सीन से हटा दो, then you put some pedestrians to go, and if they make a mistake, the cops can be there and tell the pedestrian वाला जो खिलाड़ी है उनको ये बता सकते हैं कि आप ये वायलेट कर रहे हो, ताकि सबको सोचना शुरू हो जाएगी। एक आधे घंटे के आपके जो फिजिकल एजुकेशन में यू कैन ब्रिंग इट इन दैट यू वॉक रन एंड देन यू से व्हेन टू स्टॉप. So then if they make a mistake and somebody moves in the yellow light itself या red light जब आप बताओगे, when you announce red light and if somebody moves then the cops can come and catch. But आपको ये भी सिखाना पड़ेगा कि हर जगह कॉप नहीं होते हैं, अपने आप ये ऊपर वाला जो अपने अंदर है, आप अंतरात्मा के हिसाब से आपने ये सही किया कि नहीं, that you should try to bring across, because every place a cop will not be there, but ubiquitously did you make a mistake or not. So this empathy to अगर मैं ये mistake किया था, मैं what happens to the other road user, वो आपको इसमें निकल के it should come out very clearly, and then you should sit and debrief जो बोलते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आपने ये क्या किया, ये क्या किया, और छोटा सा 2-3 सेंटेंस में आप लिख लो. That will be a very good activity based learning for a kid. ऐसे बहुत सारे गेम आप गेमिफिकेशन कर सकते हो हर रूल्स का. वन गेमिफिकेशन अपने माई भारत पोर्टल में आप खेल सकते हो अपने घर पे बैठे हुए कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से, और ये मूविंग योर हैंड्स लेग्स फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि ये रेड लाइट ग्रीन लाइट ये करना है, या डिसीजन लेना है कि यहाँ पे क्या साइनेज लगाना है. यू कैन do a field visit to a road and say कि आपको ये रोड कैसे कम्युनिकेट कर रही है. आप meaning when they come from home to house, meaning when they come from home to school, जो रेड लाइट या ग्रीन लाइट या मार्किंग, ये साइनेजेस, फर्नीचर्स, इसके बारे में क्या क्या है. What is it tell? What is that the drivers are expected to do? ये mandatory signs क्या है, ये cautionary signs है, या यहाँ पे कुछ cautionary signs डाल सकते हो. So आप हर नागरिक responsibility ले सकते हो कि
ये नहीं है, ताकि हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये सब करने से अपने रोड्स अच्छा हो जाएगी, सो आवर रोड efficiency improves and we also have less people dead. Thank you all for participating and being the volunteers for this road safety month का ये जो 2024 रोड सेफ्टी मंथ का जो कार्यक्रम है, आप सब वॉलंटियर कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। एंड ये जब हम आम जनता को लेकर जाएंगे और ये जागरण हो जाएगी कि ऐसे करना है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट 2030 रिडक्शन कैन बी अचीव्ड मच फास्टर देन दैट। शायद 1-2 साल में ही हो जाएगी, जब इफ यू आर एबल टू मेक इट लाइक अ मूवमेंट। हमें इसको एक अभियान नहीं है, दिस विड बी अ रेवोल्यूशन ऑफ थॉट्स। ये जो सोच में है, दैट कैन हैपन ओनली बाय द टीचर्स। ये जो टीचर्स है, आपके हिसाब आप ही वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हो जो कैन मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अ चाइल्ड हु नॉट ओनली विल बिकम अ बेटर सिटीजन, वो कल बहुत अच्छे नागरिक हो जाएंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दे विल बिकम अ रेगुलेटर फॉर द पेरेंट्स। वो बताएंगे कि आप गाड़ी ऐसे मत चलाओ, यहाँ पे थोड़ा देख लो, राइट? दे बिकम द ट्रेनर्स फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो इन मेनी केसेस। तो आप सबके लिए मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ कि आप इस अभियान में become a very important part of it. Thank you very much.